So now we will study the equation for a stationary wave. Stationary wave. Stationary wave. See what stationary waves are. Suppose there are two bridges, ये ऐसे नाइफ एजेस है, ऐसे दो स्टैंड्स है. इन स्टैंड्स पर हमने एक धागा बांध दिए, कपड़े सीने का धागा, एंड वी हैव पुल्ड इट. तो क्या होगा, यहाँ से इंसिडेंट वेव ऐसी जाएगी. इंसिडेंट वेव एक्चुअली इसका वेवलेंथ में कहीं कम कहीं ज़्यादा हो जा रहा है. सो सपोज इंसिडेंट वेव्स यहाँ से जा रही है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, आर राइट हैंड साइड, अपने राइट हैंड साइड की तरफ इंसिडेंट वेव्स जा रही है. नाउ दिस पॉइंट, at these 2 points A and B, the strings, the ends of the strings do not have freedom enough to vibrate, and that's why the string will not be able to vibrate here as well as at point B. So point B has become the boundary of a denser medium. So this incident wave will get reflected from point B, and we know when a crest is reflected, it is reflected as a trough, and there is a phase change of pi radian 180 degrees. तो यहाँ से इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्ट होके जाएगी, क्रेस्ट विल बी रिफ्लेक्टेड एज अ ट्रोफ, और इस तरह ये वेव यहाँ जाएगी, फिर यहाँ ट्रोफ जा रहा है, तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड एज अ क्रेस्ट, एंड इन दिस वे द वेव विल रिमेन कन्फाइंड within these two boundaries A and B. So such waves which do not travel further than B and further than A, which vibrate only in this particular length, area, region, are called stationary waves. Because stationary, NARY, stationary means standing at one place. मतलब एक पॉइंट से आके दूसरे वही हाँ, एक पॉइंट पे एक पॉइंट A से आके B तक आ गई, और B से फिर A, फिर A से B, फिर B से A से B, B से, इसी के बीच में रस्सी वाइब्रेट हो रही है. उतने डिस्टेंस पे इतने ही डिस्टेंस पे वाइब्रेशंस वगैरह हो रहे हैं, कहीं नहीं हो रहे हैं, लेकिन the waves are not traveling anywhere. So when two simple harmonic progressive waves having same frequency, देखो मैं क्या लिखता हूँ, when two simple harmonic progressive waves, simple harmonic progressive waves, simple harmonic मतलब जो हुक्स लॉ इन SHM ओबे करती है. Force and displacement are directly proportional to each other, and force and displacement are in opposite direction. So when two simple harmonic progressive waves, दो waves कहाँ है simple harmonic, एक जाने वाली wave लेफ्ट से राइट और दूसरी आने वाली wave. तो जाने वाली wave और आने वाली दो simple harmonic progressive waves having same amplitude, having same amplitude, having same amplitude, सेम टाइम पीरियड, दोनों वेव्स का टाइम पीरियड सेम है, सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसीज भी सेम है, सेम वेवलेंथ, वेवलेंथ भी सेम है, बट ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस अलोंग द सेम लाइन, ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस along the same line, along the same line, interfere या superimpose into each other या interfere, the resultant wave, ये जो resultant wave बन गई ये पान वाली, does not travel in any direction and is called a standing or stationary wave. ये उसका डेफिनेशन है स्टेशनरी वेव का. When two simple harmonic progressive waves having same amplitude, same time period, same frequency, same wavelength
but traveling in opposite directions along the same line interfere with each other, the resultant wave does not travel in any direction, and that resultant wave is called standing wave or stationary wave. अब इसको हम इसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करके लाएंगे. We will derive a mathematical formula for it. एग्जाम में ये पूछ सकता है. Of course, आ चुका है, कई बार बोर्ड marks एग्जाम से में आता है आ चुका है. दो मार्क्स. नहीं, Weightage क्या है? ये डेरिवेशन चैप्टर का वेटेज कभी 3 मार्क्स कभी 4 मार्क्स के लिए. इसका वेटेज ज्यादा है ये चैप्टर. अरे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है. 7 चैप्टर. हाँ, ये भी अगेन 2 चैप्टर्स मिलाते हैं. पुराने सिलेबस में एक चैप्टर था वेव मोशन और दूसरा था स्टेशनरी वेव्स, और दोनों को मिला के सुपरपोजिशन ऑफ वेव नाम देती है. तो फिजिक्स पार्ट 1 जो है अपना, उसमें मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स आर लाइक दैट कि दो कंबाइन करके सिंगल बनाए हुए हैं. अब देखो, जो वेव राइट हैंड साइड जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जा रही है, उसके लिए अपन ने डिराइव किए थे इक्वेशन, याद करो परसों. क्या था? y is equal to a sin 2 pi 2 pi p by t minus x upon lambda. ऐसा था. याद आ रहा है किसी Yes, को? sir. ठीक है. और जो ये क्या है? द वेव गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस. पॉजिटिव एक्स एक्सिस जा रही तो माइनस साइन आएगा, और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो वेव जाएंगी उसके लिए प्लस साइन आएगा. और नवनीत डाइजेस्ट में 1 मार्क के लिए छोटा क्वेश्चन पूछा है चिल्लर कि व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ अ वेव ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस. तो ये प्लस वाला इक्वेशन है. और इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दिया ये फॉर्मूला पर, टेक्स्ट बुक में दिया है. यहाँ 4 पाई है उसमें, और यहाँ कुछ वैल्यूज है. तो ये 4 पाई को ये 2 पाई करना है, और 2 से अंदर की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, फिर स्टैंडर्ड और इसको कंपेयर करके आंसर लाना है. So wave going towards negative x-axis. Now see, कब बनती है stationary waves? When these two waves superimpose upon each other. So the resultant displacement will be given by the vector sum of these two displacements, y1 bar plus y2 bar. And we write y is equal to y1 की जगह क्या लिखेंगे? a sin 2 pi p by t minus x upon lambda. और दूसरी वेव प्लस A sin 2 a sin 2 pi by lambda. p by t minus x upon lambda. ये दो वेव्स कंबाइन होती हैं. ठीक है. सॉरी, it will be plus. Yes, correct. It will be plus here. And then we will take out a as common. y is equal to a कॉमन निकालिए बाहर, और ब्रैकेट्स में बचा sin 2 pi p by t minus x upon lambda plus sin 2 pi p by t plus x upon lambda. अब इसको ध्यान से देखो, sin c और ये sin d, sin c plus sin d, मैथ्स का फॉर्मूला लगाइए आइडेंटिटी, sin c plus sin d, एंड ये ऊपर का मिटा देता हूँ. sin c plus sin d is 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. We will apply that formula. sin c plus sin d लिख देता हूँ मैं, ताकि हमको वो फॉर्मूला याद रहे. बुक में भी दिया होगा. दिया है, yes. क्योंकि बहुत से लोग का मैथ्स नहीं होता है, लेकिन फिजिक्स होता है कभी-कभी. तो ऐसे लोगों के ऑनर में y is equal to, अच्छा हम लिखेंगे अप्लाई sin c प्लस sin d इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 2 sin c प्लस d by 2 cos c minus d by 2. ऐसा ये फॉर्मूला. तो यहाँ क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू, ये a है और इधर का 2 आ जाएगा, तो 2a हो जाएगा. नहीं समझेगा तो पूछना. sin c प्लस d 2 पाई, 2 पाई के साथ सब जाओगे फिर से. अच्छा थोड़ा सा. ये देखो, ये a कॉमन है, ब्रैकेट्स में क्या बच रहा? sin. अच्छा इसको भी ब्रैकेट्स में डाल देता हूँ, नहीं तो काम sin 2 by t by 2. इसको भी ब्रैकेट्स में डाल देता हूँ. तो ये देखो sin c लिखना है, तो 2 पाई t by t लिख रहा हूँ. sin 2 पाई t by t माइनस 2 पाई x upon lambda.
ये क्या हो गया साइन सी हो गया है ना, प्लस साइन डी करना है 2 pi t प्लस 2 pi x अपॉन लैम्डा। अब उसमें देखो सी कौन बन गया और डी कौन बन गया, ये बन गया साइन सी और ये बन गया डी है ना, साइन सी प्लस साइन डी। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू ए ब्रैकेट्स में रहेगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो सी यानी क्या है 2 पाई टी बाई टी माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ये क्या है साइन सी हो गया प्लस डी लगाना है, सी प्लस डी बाई 2 है तो डी में होगा 2 pi t by t plus 2 by x by lambda 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा अपॉन 2 सी प्लस डी बाई 2। अब कॉस वाला कॉस सी 2 पाई टी बाई टी माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा माइनस 2 पाई टी बाई टी माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। अब आप समझ गए माइनस क्यों लग जाएगा, ब्रैकेट्स के बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ये समझ गए क्या लग गया 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2 है ना, दिस इज सी डी, ये सी और ये डी। अब क्या होगा कैंसलेशन, तो यहां पर होगा y इज इक्वल टू a, कैन आई राइट 2a 2a साइन, ये देखो माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा और ये क्या हो जाएगा साइन के सामने 2 पाई t बाई टी प्लस 2 पाई टी बाई टी, कितने टाइम्स हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा और अपॉन में क्या है नीचे 2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, समझ गए पहले प्लस नहीं करेंगे सर, प्लस नहीं करते। फिर उसके बाद कॉस यहाँ भी वही होने वाला है 2 पाई टी बाई टी और 2 पाई टी बाई कैंसिल होगा माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा माइनस 2 टाइम्स 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ये ऐसा लिख देता 2 टाइम्स माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा अपॉन 2 कैंसिल हो गया है ना। अब y इज इक्वल टू बचा 2a साइन 2 pi by t 2 पाई टी बाई टी into cos minus माइनस cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ये माइनस वैसे भी हट जाएगा एंड इट विल बिकम 2 पाई x अपॉन लैम्डा, ऐसा हो जाएगा। अंडरस्टूड, नाउ इट विल बी y इज इक्वल टू 2a और मैं cos को इधर ला रहा हूं cos 2 पाई x अपॉन लैम्डा इनटू sin 2 पाई t बाय t, ऐसा लिख रहा हूं। वो इसलिए कि ये जो टर्म है दिस विल बी द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, और इसको हम क्या लिखेंगे मालूम, अब एम्पलीट्यूड लिखना है तो एम्पलीट्यूड के लिए हम r यूज करेंगे, कैपिटल R साइन 2 पाई अपॉन t यानी ओमेगा होता है ओमेगा t। तो इससे पता चला कि जब दो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स इंटरफियर होती है और स्टेशनरी वेव्स बनाती है तो वो भी सिंपल हार्मोनिक होती है, क्योंकि वो भी क्या फार्मूला ओबे कर रही है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t वाला स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन वाला है ना। तो वो जो रिजल्टेंट वेव है वो भी सिंपल हार्मोनिक वेव रहेगी, और लेकिन इसमें कहीं x है क्या, नहीं है। द एब्सेंस ऑफ द टर्म x, द एब्सेंस of the term x in y is equal to r sin omega t shows that the wave does not travel anywhere, क्योंकि x
x रहता था तो x की वैल्यू रहती थी। और इसमें क्या है, अपन वेव ऐसी बता रहे y एक्सिस पे जंप कर रही है प्लस y माइनस y, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, बीच में y इज इक्वल टू 0 और वेव ऐसी बता रहे अपन। तो इस बार क्या है, x यानी डिस्टेंस है ऐसा चलने वाला और डिस्प्लेसमेंट इज y डैश। तो x नहीं है, इसका मतलब ये वेव पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ भी नहीं जा रही और नेगेटिव x एक्सिस की तरफ भी नहीं जा रही। द वेव इज नॉट ट्रैवलिंग एनीवेयर। तो अब इसके बाद बट जब हमने स्टेशनरी वेव का डायग्राम देखा थोड़ी देर पहले, तो हमने देखा कि उसमें देयर वर सर्टेन पॉइंट्स at which the amplitude of vibration was found to be zero, and there were certain points at which the amplitude of vibration was found to be maximum. तो देखो जब रस्सी वाइब्रेट हो रही थी तो हमने ये देखा कि कुछ पॉइंट्स पर the amplitude of vibration was zero. यहाँ amplitude of vibration क्या है, जीरो है, इसको नोड बोलते हैं। यहाँ amplitude of vibration जीरो है, नोड। यहाँ की रस्सी मैक्सिमम उछल रही है ऊपर, तो इसको बोलते हैं एंटी नोड। ये नोड, यहाँ की रस्सी बहुत उछल रही है, दिस इज एंटी नोड। ये नोड, ये एंटी नोड, ये नोड, ये एंटी नोड, ये नोड। स्टेशनरी वेव्स में नोड्स एंड एंटी नोड बनते हैं ऑल्टरनेट। अब नोड क्या होता है, तो नोड को ही मिनिमा भी बोलते हैं। हाँ, तो द रीजन in stationary waves, the region in stationary waves where the amplitude of vibration is zero are called nodes. The regions in stationary waves at which the amplitude of vibration is zero are called nodes. तो resultant amplitude कितना रहता है यहाँ पर, जीरो रहता है ना। और r की वैल्यू क्या है, 2a cos 2πx अपॉन लैम्डा, r की वैल्यू। तो इसका मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जीरो रहता तो r की वैल्यू जीरो रहती, बट r की वैल्यू कितनी है, हमने कितने को सपोज किया था r, तो वो हम वहाँ पुट करेंगे। तो वी विल राइट r की जगह हम लिखेंगे 2a cos 2πx अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 0, है ना। अब क्या होगा, 2a इधर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, इट विल बिकम cos 2πx अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा। देन cos को उधर भेज देंगे हम, तो हो जाएगा 2πx अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0, ऐसा हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 0। समझ गए ना, ये उधर गया तो फिर उसके बाद क्या होगा, तो cos इनवर्स ऑफ 0 कब होता है, एक तो cos π/2 और दूसरा cos 3π/2। तो हम लिखेंगे cos 2πx1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू π/3, ये cos के लिए, cos 0 कब होगा, सॉरी π/2 के लिए होगा, एंड cos 2πx2 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 3π/2। मीनिंग समझो, cos 0 लिखे हमने इनवर्स ऑफ 0, और cos 0 मतलब cos की वैल्यू 0 कब होती है, तो π/2 होती है या 3π/2 होती है, तो हमने यहाँ लिख दी है। और यहाँ हमने x1 लिखे और यहाँ x2 लिखे, क्यों लिखे, क्योंकि x1 यानी ये नोड और x2 यानी ये नोड, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है वो हमको फाइंड करना है। तो यहाँ देखो पाई कैंसिल, यहाँ क्या बच रहा है, अरे cos तो भाग गया ना, सॉरी cos तो भाग गया उधर, cos तो है नहीं, 2πx1 इज π/2, तो पाई कैंसिल, और इधर क्या बच रहा है 2x1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 1/2, ऐसा हो जाएगा। अब क्या हुआ, ये 2 इधर चला जाएगा, एक काम करेंगे x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लैम्डा ऊपर जाएगा, लैम्डा/4। तो पहला नोड कहाँ बनेगा, जहाँ लैम्डा/4 रहेगा, पोजीशन ऑफ फर्स्ट नोड, x1 इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट नोड, लैम्डा/4। एंड फिर यहाँ क्या होगा, 2 फिर से यहाँ भी कैंसिल होगा, 2x2 अपॉन लैम्डा इज 3/2,
तो x2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 4. तो दिस इज द पोजीशन ऑफ Second node. सेकंड नोड. पोजीशन ऑफ सेकंड नोड यहाँ बनेगा. और डिफरेंस बिटवीन टू नोड्स क्या हो जाएगा? डिफरेंस बिटवीन टू नोड्स माइनस कर देंगे, है ना? तो डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, वो डिफरेंस की जगह डिस्टेंस लिख देता हूँ. डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स. सक्सेसिव यानी एक के बाद एक आने वाले. पहला नोड कहाँ आया, ये दूसरा नोड कहाँ है, x2, और पहला x1 माइनस करेंगे तो x2 विल बी 3 लैम्डा बाय 4 माइनस 1 लैम्डा बाय 4, तो क्या होगा 2 लैम्डा बाय 4 यानी लैम्डा बाय 2. समझ गए? Yes. तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव नोड्स इज ऑलवेज लैम्डा बाय 2. कोई भी नोड से नोड की जो दूरी होती है वो लैम्डा बाय 2 होती है. नोड से नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाय 2 होती है. द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव नोड्स इज लैम्डा बाय 2. ये भी प्रूव करने आता है. derive an equation of the stationary waves and show that nodes and antinodes are equispaced. equispaced यानी दो नोड्स के बीच में जितना डिस्टेंस यहाँ है लैम्डा बाय 2, ये दो नोड्स में भी उतना ही है, ये दो नोड्स में उतना ही, ये दो नोड्स में उतना ही है. अब एंटीनोड्स ये मिटाता हूँ. ऐसा ही हम सॉल्व करेंगे किसके लिए, तो एंटीनोड्स के लिए. ये 4 मार्क्स के लिए आता है डेरिवेशन एग्जाम में. एंटीनोड्स का नहीं पूरा मिला. पूरा मिला. Nodes plus 4 marks antidotes. का. हाँ नोड्स प्लस एंटीनोड्स. 4 मार्क्स. अगर 7-8 चार तो आखिरी है ना. ऐसे जो भी है ये शेड या कभी कभी ओनली नोड्स पूछ लेंगे. अब व्हाट आर एंटीनोड्स? मेरा सीबीएसई वाला तो समझ नहीं रहा. What are antinodes? Antinodes are also called maxima, क्योंकि है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहता. याद है इंटरफेरेंस में क्या होता था, ब्राइट बैंड को बोलते थे मैक्सिमा और डार्क को बोलते थे मिनिमा. तो वैसे एंटीनोड भी बोल दिया अगर ब्राइट बैंड को तो चलता, और डार्क बैंड को मिनिमा भी बोल दिया या नोड भी बोल दिया तो चलता. अब व्हाट आर एंटीनोड? द रीजन इन स्टेशनरी वेव्स वेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज मैक्सिमा. रस्सी बहुत जोर की उछलती है ये बीच में. और फिर आपको आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन नोड्स एंड एंटीनोड्स. तो लिखना नोड्स में एम्पलीट्यूड 0 होता है, एंटीनोड में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है. नोड में काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, एंटीनोड में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है. नोड में एनर्जी T0 होती है, वेलोसिटी 0 होती है, एंटीनोड में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है. वो सब बना लेना फिर हिसाब से. वो लिखवा के दे दूंगा मैं. हाँ डाइजेस्ट में भी दिया है, तो मैं लिखवा के दे दूंगा. आप देखो एंटीनोड्स. The region in stationary waves where the amplitude of vibration is maximum are called antinodes. Antinodes. अब एंटीनोड में एम्पलीट्यूड कितना होता है, मैक्सिमम प्लस माइनस 2a. पूछो 2a क्यों आया, ये आपको समझता है. ओनली ऊपर रहता था तो a, लेकिन ये तो प्लस ऊपर और नीचे दोनों है 2a, इसलिए और प्लस माइनस लगा दिया हमने. और यहाँ क्या करेंगे फिर, cos 2πx अपॉन लैम्डा. यही था ना अपना, इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a. नहीं यहाँ 2a r की जगह याद करो. तो ये 2a कैंसिल हो जाएगा. तो इट विल बी cos 2πx अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. प्लस माइनस 1 अभी cos उधर जाएगा. 2πx अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1. कब होता है, फिर दो कंडीशंस बन जाएंगी इसकी. कब बन जाएंगी, तो 2πx1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू cos 1 कब होता, 0, cos 0 और 2πx अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू कब बनता, और ये प्लस माइनस 1 है ना. प्लस 1 कब बनता, 0 माइनस 1 कब बनता, 180 है. 180 यानी पाई पे याद करो. तो ये अब क्या बचेगा यहाँ, x1 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 0 अपॉन x1, ये पूरा ही 0 हो जाता है ना. तो अपन ने जो बनाया ना ये ग्राफ, ये अपन ने जो बनाया ना ये पूरी तरह करेक्ट नहीं है. क्यों मालूम है,
x1 पहला एंटी नोड कहाँ बन रहा है? 0 0 पर। पे। तो ये ऐसा बनना चाहिए, ऐसा ऐसा। ये यहाँ क्या बन रहा पहला? x1 0 पर, ओरिजिन 0 पर क्या बन रहा पहला? एंटी Anti नोड node। बन रहा है यहाँ पर, और यहाँ नोड बन रहा है। ये करेक्ट वाली डायग्राम उसकी। तो x1 0, यहाँ पर x2 दे देंगे, पाई पाई कैंसिल, बोलो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा बाय 2। और दोनों में डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव, पहले सक्सेसिव लिखा था, कॉन्सेक्यूटिव लिखा था, कॉन्सेक्यूटिव एंटी नोड्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1, और x2 कितना है? लैम्डा बाय 2 माइनस 0 लैम्डा बाय 2। यानी the distance between any two antinodes also is lambda by 2 and the distance between any two nodes also is lambda by 2। ये यहाँ तक डेरिवेशन हुआ। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स। 8-10 प्रॉपर्टीज दी, उसमें से 4 प्रॉपर्टीज हम याद रखेंगे एग्जाम में लिखने के लिए। तो वी विल स्टॉप हियर, है ना? 10:30 हो गए। हाँ, और